Now I think it is visible to all of you. Is it visible? My screen is visible to all of you? Yes, please respond. Yes, sir. So yesterday we have seen one of the derivation where plane motion of a particle, and we took a case where a particle is making a rotary motion. When it is making a rotary motion, the velocity is also changing, and for that we consider that it splits into two parts. Sorry, velocity is there rho omega. While we go for change in velocity, the change in velocity will occur only because of some acceleration. Okay, na? Change in velocity will occur because of some acceleration, and that we have divided into, particularly in this fashion, and it is in making a rotary sense. We took a case where we saw that it will be del V and del V split into Vn and Vt. है ना? So this Vn and Vt, this part, we have seen that what are the ways to calculate this vector notation and the dot product and cross product, which you know. So rho omega square is the dot product, while its cross product is omega cross rho. Same. Now let us now move to another derivation. Just a minute. Let us move to another derivation where now we say plane motion of a rigid body. Okay. Now this is our second topic, plane motion of a rigid body. So in general, the position of a rigid body in a plane motion is defined by specifying defined by is completely defined by specifying either the positions of any 2 points on the body, है ना? or 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 the the position of a
position of a point and the orientation of a line fixed on the rigid body. बेसिकली कहीं ना कहीं हम अगर हम देखें तो it comes similar to our Cartesian coordinates and the polar coordinates. Okay, let me mark it so that हम इसमें आगे भी हम काम कर पाए. मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये नीचे हम बड़ा कर पाए. इसकी मैं एक्सटेंड कर देंगे और चीज़ों को. और I think this much is sufficient. इसको बड़ा कर. ठीक. तो क्या मतलब है इसका वो देख लेते हैं. हम डायग्राम से भी देख लेते हैं. What I'm saying that if on a body, suppose there is a body, okay, in which agar position of a rigid body in a plane motion is completely defined by either the position of any 2 points. Suppose हमारे पास में कोई भी 2 पॉइंट ले लिया हमने, ये A और B. तो अगर हमें ये मालूम है कि A और B की कुछ वेलोसिटी सेंस हमें पता है, say this is VB, this is VA, हाँ, और ये दोनों क्योंकि फिक्स पॉइंट है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A या A विद रिस्पेक्ट टू B विल बी 0. और ये कब संभव है इस प्रकार की वेलोसिटी होना? जब हम उसका कोई एक सेंस ऑफ वेलोसिटी दिखा पाए कि किधर को जा रही. क्योंकि अगर पैरेलल जाएंगे तो उसका मतलब है कि दे आर मूविंग. If they are not intersecting, what I'm talking about, if VA is not intersecting with VB, then it means the body is sliding or body is moving in a straight horizontal path. Or let it be any path. Let it be any path, but they are not intersecting. It means they are moving in a straight path. लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि VB और VA इंटरसेक्ट करेंगे, it means there will be a rotary motion. और रोटरी मोशन को भी हमने समझा कि कैसे हमने एक पोजीशन पे देखा था कि वहां पे इंस्टेंटेनियस सेंटर हम निकाल सकते हैं, है ना. तो एक जगह पे कहीं वो इंस्टेंटेनियस सेंटर बन सकता है. वो तो था जब रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 2, बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 2. एक को हमने रेफरेंस मान लिया था बॉडी 1 को. नाउ वी आर डिस्कसिंग कि the position of the body can be defined either by any 2 points कि भाई ये B इधर को जा रहा है, A इधर को जा रहा है, या फिर हम एक प्रकार से उसका ये निकालने की R थीटा बना दें. जैसे AB बेसिकली दिस इज व्हाट, है ना. तो किस सेंस में घूम रहा है, ये डिस्टेंस हो गया, एंड लेट्स से दिस इज ओमेगा. तो R थीटा इज आल्सो वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट. नाउ इसको ना कहीं हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का एक केस हम पकड़ रहे हैं, सपोज, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस. लेट मी जस्ट पुट इट इन अनदर डायग्राम. एक दूसरा बनाते हैं. मैंने कह दिया ये कि आपसे दिस इज वी, इसी को देखते हुए, और इधर हमने बता दिया दिस इज गोइंग टू बी वी बी, गोइंग टू बी ये
VB. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आप जोड़ते हो, इस एक प्रकार से हम बना रहे हैं इसको एक पॉलीगन. Velocity of b with respect to a, this you will find this, you see this is omega. Velocity of b with, this is velocity a, या इसको हम अगर आप चाहो तो इसमें हम va vb ठीक है. Velocity of b with respect to a, ये क्या होगा? This line will, if you make it parallel to this one, you will find this field basically perpendicular to, अगर हम इसको सिमेट्री देखें, this will be velocity of b with respect to a perpendicular to line joining b, okay, in the sense of omega. So when we make this interpretation that the body which is making a rotary sense, now when we say that b, vb and va have certain directions which somewhere they intersect, it means there is a rotary motion. और फिर उस रोटरी मोशन को भी हमने इस प्रकार से दिखाया कि इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग ए, तो बी की कोई पोजीशन दिख रही है, तो you will find indirectly that velocity of b with respect to a must be a line perpendicular to line joining a. इसको हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ b, velocity of b is given as velocity of a plus velocity of b with respect to a. Write down these statements. ये तो तब है जब हमने ये मान लिया कि बॉडी इस ए पे हिंज्ड है और इसके अलावा घूम रही है. तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ बी इस प्रकार से निकालते हैं. सपोज जो उससे पहले वाली लिंक है, क्योंकि बी के लिए जो पहला पॉइंट है वो ए है, तो उससे पहले वाला पॉइंट जो है उसकी कोई वेलोसिटी है तो वो लिखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं. हालांकि यहाँ अलग बात है कि यहाँ वी ए जीरो है, वी ए जीरो, ठीक है. और लेकिन अब दूसरा स्टेप और देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a is given as velocity of b minus velocity of a. Okay, it is given in this way. Velocity of b जो है तो कैसे निकालेंगे? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ b with respect to a. हालांकि अभी भी इसमें एक चीज और हमें लिखनी है कि वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी. वेलोसिटी of b will be ओमेगा into ab, और अगर va देखते हैं इस केस में va जीरो है क्योंकि वो फिक्स पॉइंट हमने माना हुआ है उसको, ठीक है ना. तो आप इधर वे इसको समझने की कोशिश करें, चाहे सेकंड पॉइंट को पहले पकड़ लें या फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट स्टेप लें, बिकॉज हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. मैंने है ना, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इस पॉइंट पे हम मोशन दिखा रहे हैं, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, in which VB is given as omega into AB, omega into R, है ना, and VA is zero. ठीक, this is
ओके, तो एक तो ये हो गया। और अगर हम इसको एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो acceleration of B is given as acceleration of A plus acceleration of B with respect to A. ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ ए तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वी बी कुछ था ही नहीं, जब वी बी कुछ नहीं था तो ये हो गया जीरो। बट वेलोसिटी ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज ये रोटरी सेंस है तो सर्टेनली हमने जैसे देखा देयर विल बी वन कंपोनेंट normal component and second will be tangential component. ठीक है, normal and tangential। तो इसको आप अगर हम 3 मान लेते हैं, इसमें क्या होगा, हालांकि इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, acceleration of b with respect to a is acceleration of b minus acceleration of a। ठीक है, जैसे हमने वहां पे किया था। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो स्प्लिट कर दिया हमने ए एन बी ए प्लस ए टी बी ए, और ये जो है ये हो गया जीरो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो मैंने लिखा। तो जब हमारे पास में एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाला हमने तो लिखेंगे हम स्टेज पूरा ही। अगर हम यहाँ दिखाएं एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बी फिक्स्ड है, लेकिन हो सकता है कि किसी केस में पॉइंट बी फिक्स ना हो। इफ देयर इज मोमेंट of that reference point, A is also in motion, then certainly it will be given as, इसको just थोड़ा सा ये है ना, देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ वो अलग बात है कि ये हमारा एक सोल्यूशन में जीरो है। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी ए क्या होगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, जो भी हमने पहले किया था। नॉर्मल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कितना आया था, ए बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। और टेंजेंशियल का क्या आया था, ए बी ओमेगा हो जाएगा, है ना, रो अल्फा। तो अगर हम यहाँ देखें एक ये बनेगा और एक बनेगा ए बी अल्फा। ठीक है, यस। हाँ, ये दो चीजें बनेंगी। तो मतलब कहने का ये कि जो ए एन बी है दैट विल बी गिवन एज ओमेगा, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे कर दें, ओमेगा क्रॉस ए बी और ए एन बी ए, सॉरी ये ए एन नहीं है, इसको सही कर देते हैं, ए टी। क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस ओमेगा, सॉरी ए बी, है ना। यस। ये हो गया आपका वेलोसिटी का एनालिसिस, और ये हो गया उसका एक्सेलरेशन एनालिसिस। ठीक है, this is pertaining to this particular example where we say that हमने जो लिया कि यहाँ पे हमने मान लिया कि A is a fixed point। अगर हम कहें कि भाई दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, A भी मूव कर रहा है और B भी मूव कर रहा है ना, और वो दोनों इस प्रकार से मूव कर रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, तो फिर ये चीज यहाँ पे लागू नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, नॉर्मली हम जो मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। मैं अभी बताऊंगा क्यों हम स्पेसिफिकली इसी केस पे ज्यादा आई एम पुटिंग प्रेशर की, आई हैव टेकन स्पेसिफिकली दिस केस कि भाई A is instantaneous center of rotation and B
और एनी अदर पॉइंट विच इज इंटरसेक्टिंग, तो उसमें कैसे होगा। चलिए, तो ये हमारे पास में एक दूसरा स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो ये वन हमने ये लिया था एक, इसको हम कर देते हैं दो, और अब हम चलते हैं, एक और है हमारे पास में, वो थर्ड है, थोड़ा से क्या है, मोशन ऑफ ए particle in a moving rigid body। अब वो जो हमने मोशन देखा था और वो जो बॉडी देखी थी, अब हम दोनों को इस प्रकार से अटैच कर रहे हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए मूविंग रिजिड बॉडी। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, जिस पे भी हम लोग बात करेंगे। कैसे है मैं वो भी बताता हूँ आपको। let us have a diagram जिसमें थोड़ा सा मैं स्केल लेना चाहता हूँ। Let's see. Let us presume there is a link which is rotating. Is rotating. और दूसरी बात यह है कि इस लिंक पर एक और लिंक है जो स्लाइडर की तरीके से स्लाइड कर रही है। So if I say that at any instant of time, the link which is moving over this link, say at time instant t, this link 2, ये तो हो गया 1, एक काम करते हैं, link 1, this is link 2, this is link 3, ये हुआ ना। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लेते हैं किसी एक इंस्टेंट पर, से एट टाइम t इंस्टेंट, तो एक हमने जो है एक कॉमन पॉइंट ले लिया, वन इज P2, वन इज P3, बोथ आर कॉन्सिडेंट पॉइंट्स। एक पोजीशन को देख लिया हमने ऐसे। विद दिस statement, now I say that when the link to rotate in the particular direction, say anti-clockwise with the say omega, what development do you see? You see that this link है ना, जो पहले तो बढ़ा सकते हैं ऐसे, जो पॉइंट P2 है वो तो P2 यहाँ पे आ गया एज ए P2 डैश, लेकिन जो P3 है, बिकॉज ऑफ सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट हैज नाउ गेन्ड और रीच टू अ न्यू पोजीशन P3 डैश। होता है ना, जब आप कोई चीज में स्लाइडर है जो स्लाइड कर रही है, due to centrifugal force and rotation, it reaches to new position P3 dash। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उसको let me join them with a straight line, फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, उसको भी ऐसे स्ट्रेट ही मान लीजिए। ठीक, such that this is quoted as the arrow here. Okay, this is distance is delta P2. This is in this direction
delta P3, and this is then says as delta P3 with respect to 2. Relative velocity है ना, sliding थी. So sliding मान दिया. Now, such that we can say that delta P3, delta P3 can be given as P2 dash, delta P3, sorry, delta P3 is equal to, गलत लिख रहा हूं मैं, delta P3 is equal to delta P2 plus delta P3 by 2, ऐसे लिख सकते हैं. हमने क्या किया भाई, ये ट्रायंगल बनाया ना ऐसे, और ये दिखा है कि एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, एक एरो, दिस इज P2 dash, P3 dash, this becomes delta P3, delta P2, delta P3, sorry, delta P3 with respect to 2 is given in this way. तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा P3 इज इक्वल टू डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 बाई 2, है ना. इसके एरो इस प्रकार से हैं, इसका भी एरो इधर को जा रहा है, इसका एरो ऐसे जा रहा है, ये देखो. इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा P2 इज P2 डैश प्लस ये क्या हुआ P2 डैश P3 डैश, यहाँ ठीक है. और डेल्टा P2 क्या था, ये डेल्टा P3 क्या, दिस इज, काम कर लेते हैं, P3, ठीक है ना. अब ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए क्या हुआ, when we say this statement that P3 dash is equal to P2 dash plus P2 dash P3 dash, है ना. ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ये प्रकार से, जैसे हमने मांगा डेल्टा P3 इज इक्वल टू डेल्टा P2 प्लस, लेकिन है क्या, क्योंकि प्रेज्यूमिंग दैट, नाउ ये हम लिख दें, presuming that the RPM है ना is constant, तो डेल्टा थीटा बाई टी ये प्रकार से फिक्स हो गया, है ना. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एक प्रकार से हो गया, इसको मान लीजिए कांस्टेंट. हालांकि जरूरत नहीं, आप अपने आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था वो स्पेस पे कहीं पे इंटरफेयर ना करें, मुझे उसमें और भी डिस्कशंस करने हैं, ठीक है ना. यहाँ लिख लो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट. तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसके बेसिस पे हम ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, या इसको पहले माना है ना कि डिस्टेंस अगर
इस प्रकार से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं दैट डेल्टा P3 इज इक्वल टू P2 प्लस P3/2 और वेयर वी से दिस इज आरपीएम इज कांस्टेंट। हम ये लिख सकते हैं दैट Vp3 is equal to Vp2 plus velocity of P3 respect to 2। तो ये डिस्टेंस था, है ना, पहले केस में ये डिस्टेंस था। अब हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट 2 आ गया वेलोसिटी का। अगर ऐसे ही चलें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AP3 इज इक्वल टू AP2 प्लस AP3/2। ये होना चाहिए, लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा जब हम इसको ये बोलें कि लेट अस फर्दर स्टडी। एक और थोड़ा सा हम लोग बात करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन की जो सिर्फ यहीं से निकल रही है, ठीक है। तो एक हमने ना हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी, ऐसा, ठीक। उसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये आपका डेल्टा थ्री, इस पॉइंट को हमने माना से ए। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करें कि यहीं लिख लेते हैं, ये दिखता भी रहेगा कि पहला डिस्टेंस एनालाइज किया मोशन की डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P2 to P2 dash is due to rotation, due to rotation of link to further P2 to P2 dash आ गए। अब P2 dash to A is due to outward velocity, ठीक है ना। आउटवर्ड वेलोसिटी से क्या हुआ, वो सीधे हम ये मान लेते हैं कि वो यहां पहुंच गया। तो वो इंस्टेड ऑफ ए, इट नाउ प्रैक्टिकली वी हैव सीन दैट इट रीचेस टू P3 डैश। भाई ये तो रोटेशन हो गया, एक आउटवर्ड हो गया। तो दिस डिस्टेंस जस्ट all these junk calls। So when I say कि अगर हम इसको भी ऐड करें A to P3 डैश, तो A to P3 डैश एक नया टर्म हम इसको ऐड करते हैं, and we say that because of some extra component of acceleration, extra component of acceleration is responsible for the slider, because of that it moves from A to P3 डैश। तो उन्होंने उस डिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए कहा दैट दिस इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको देखते हैं ये है क्या कोरियोलिस कंपोनेंट। बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट कोरियोलिस, द नेम फॉर दिस एक्स्ट्रा ट्रावर्स डिस्टेंस, ये इसको हम एक्स्ट्रा ट्रावर्स डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का,
हाँ, इसको देखते हैं क्या चीज है। लेट अस नाउ मूव। AP3 डैश है ना, हम इधर मूव कर रहे हैं या इसी में चलाएं यहाँ पर? चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो दिस, मैं इसको फिगर को हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना, ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको फिर से बनाया था। तो लेट अस सी, I said additional traverse distance which is given as a P3 dash is given as AP3 dash is given as, just see in this diagram, ये पहले वाले फिगर में है ना, यहाँ इस वाले पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये अगर हम मान लेते हैं ये डेल्टा थीटा है, तो ये भी एक प्रकार से डेल्टा थीटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, P2 डैश P3 डैश इंटू डेल्टा थीटा, ये लिखेंगे ना। P2 डैश P3 डैश इंटू डेल्टा थीटा, प्रेज्यूमिंग दैट एक स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए दैट इज इक्वल टू दिस AP3 डैश। नाउ इसको और एनालाइज करते हैं। व्हाट इज P3 डैश? कैन वी से, अगर हम देखते हैं द टर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया, P2 डैश P3 डैश बाय हम डेल्टा टी, ये होगा ना, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो वेलोसिटी टर्म है। तो P3/2, तो अब ये इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, P2 डैश P3 डैश इज इक्वल टू V3/2 इंटू डेल टी। हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, डेल क्या था ये हमारे पास में, सॉरी P3 वी लास्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं, V पार्टिकल 3 है, इसको अगर P मान लें या हम इसको डेल, सॉरी डेल ना रखें, VP3 ऐसे कर लेते हैं ना, पहले ये रख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू डेल टी, यही रखा ना। और अब एक चीज और है यहाँ पे, डेल थीटा को देखें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल थीटा इज इक्वल टू, या डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा, such that del theta is equal to omega into del t। ठीक है, तो एक तो हमने स्टेटमेंट ये लिखा और दूसरा स्टेटमेंट हमने ये लिखा, दिस बिकम्स ओमेगा into del t, which basically comes as what, V3/2 into ओमेगा into del t स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली लिख लें ताकि ओमेगा कौन सा ओमेगा है, तो हम एक काम करते हैं हर जगह पे ना, जैसे ओमेगा, तो ये ओमेगा 2, इसको भी वर्ड डाल देते हैं ओमेगा 2, ओमेगा 2।
और वो जो p था उसको भी हम यहाँ p कर देते हैं कि पॉइंट p3/2, ठीक है। लॉस्ट योर पॉइंट p3/2 है, वो p है, याद रखिएगा, तो p/3/2। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास, दिस इज बिकॉज ऑफ AP3 इसको जस्ट यू रिकॉल that this additional displacement is proportional to, how to speak it, additional displacement is proportional to the sum, is proportional to the square, basically हम बाद में करेंगे, to the square of the time elapsed okay, देखा ना मैं, the additional displacement is proportional to the square of the time elapsed, ये वैल्यू और इसके साथ में, and if you recall the formula, अगर आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा हो, जस्ट मैं एक नोट डाल देता हूँ, okay? From the basics of mechanics, you know, S is equal to ut plus half at square, पढ़ा ये? तो ये जो है हाफ एटी स्क्वायर, and this half 80 square basically you have to s is equal to 80, अब वो 80 का मतलब यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से, this half 80 is given as equal to, अगर वो AP2 फिक्स है तो वो जीरो हो जाएगा वहां पर, लेकिन अब इस केस में तो अभी हम देखते हैं AP2 में क्या हो रहा है, जैसे अब AP2 जो रोटेट कर रहा है ना, लिंक टू रोटेट कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, इसको भी मैं भी आपको बताऊंगा क्या हो सकता है इसमें। दूसरा प्लस ये जो AP3/2 है, इसको स्लाइडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल प्लस टेंजेंशियल प्लस ट्वाइस V3/2 और साथ में ω2 ट्वाइस V ओमेगा, ये आप लिखोगे, ये तब है इसमें भी इसको अगर हम देखें इस स्टेटमेंट को, इफ ये कब होगा, when link 3 is moving along a curvy linear, थोड़ा सा इसका कर्वी लीनियर, इसको कर्वी लीनियर पाथ, तो कर्वी लीनियर पाथ कहाँ हो रहा है, ये वाला हमारा कर्वी लीनियर पाथ ही चल रहा है। तो AP3 इज गिवन इन दिस वे, और इसमें हम और भी इसको वो कर सकते हैं, जब कर्वी लीनियर पाथ है हम लिख सकते हैं AN
P3/2 नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल विल बिकम, इसका इसका अगर आपको ध्यान हो, हमने नॉर्मल में क्या किया था? v² भी किया था हमने। हाँ, ये किया था ना, v²/रो। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट को v²/रो भी लिखा जा सकता है, या फिर रो ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। दोनों में से कोई भी एक टर्म आप यूज कर सकते हो, जो उस वक्त आपको लगता है कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? Vp3/2 का स्क्वायर बाई रो, ये भी लिखा जा सकता है। या फिर क्या? रो ओमेगा रो स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये भी लिखा जा सकता है। और जहां तक बात है इसकी, P3/2, ये क्या था? अल्फा, अल्फा था ना साथ में, क्या ये था? अल्फा ए बी। ठीक है, तो अल्फा ए बी बेसिकली, इसको हम अभी बताएंगे किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। मैंने ये इसलिए यहाँ पे दिखाया कि ये पार्ट जो है, when we say delta t tends to 0, है ना, when we say delta t tends to 0, ये तो हमने बताया this becomes very much similar to a P3/2, क्योंकि वो जो क्या था हमारे पास में, जो टेंजेंट था दैट इज सिमिलर टू नॉर्मल, हमने यहाँ जो बताया था, याद आ रहा है? यहाँ पे, यस सर। है ना, और जो नॉर्मल है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वी सेड Vt coincides with V। ठीक है, और Vn is directed towards the center of rotation of curvature। इसको कैसे अभी हम अपने फॉर्मूलाज में यूज करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन ये अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन। अच्छा, ये तो हो गया जब कर्वी लीनियर पाथ है। हाँ, लेकिन अगर हम ये बोलें कि व्हेन, एक और स्टेटमेंट लेते हैं, ये तो हो गया ए केस, केस ए, व्हेन लिंक 3 इज लिंक 3 बोलेंगे, हाँ, when link 3 is moving over a straight path। अच्छा नहीं, ये कर्वी लीनियर पाथ नहीं ना, मैं अभी आपको मैं डायग्राम बनाता हूँ, मुझे लग रहा है मैं लिंक 3 इज मूविंग along a, यहाँ पे जस्ट मिनट, गड़बड़ हो गई है। स्ट्रेट पाथ ये है, ये वाला केस है। इसमें एक पार्ट मैं अभी आपको जस्ट करता हूँ, मैंने गड़बड़ की, और एक बार मैं एक केस बना लूँ। ये जो आप कह रहे हो ना, वो इसको ऐसे लेते हैं, सपोज एक कोई बॉडी है, ये 1, ये 2 जो रोटेट कर रही है, और इसमें एक और बॉडी है विच इज मेकिंग ए स्लाइडिंग इन दिस वे। यस यस, ये है बॉडी 3। बॉडी 2 तो रोटेट कर रही है, लेकिन बॉडी 3 जो स्लाइड कर रही है, ये कर्वी लीनियर पाथ है, सॉरी। और ये वाला जो था, ये वाला स्ट्रेट पाथ है। कर्वी लीनियर पाथ का डायग्राम, कर्वी लीनियर पाथ,
इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे। कर्वी लीनियर पाथ का डायग्राम ये है और इसको चेंज करो, ये स्ट्रेट पाथ है क्योंकि स्लाइडर जो है ना, स्लाइडर इसके ऊपर स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो जब स्लाइडर स्ट्रेट मूव कर रहा है, ओके ओके, डायग्राम ही मैंने शुरू में, तो अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे रो वर्ड यहाँ आएगा। रो क्या हुआ, रो मैं बता देता हूँ जस्ट। रो का मतलब है जो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, रो, है ना। ये कर्व, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये, इसके अलोंग ये कर्वेचर है। ये है इसका रो। रिकॉल करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसमें इसमें अगर आप देखते हैं तो ये होगा इसका, सॉरी इसको और थोड़ा सही करते हैं। इसके, इसका अगर हम कोई भी कर्व लेंगे, तो ये इस पे जो टेंजेंट होगा, ठीक है, तो ये टेंजेंट वाला कौन सा पार्ट है, ए टी पी 3/2, ये वाला, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है। और ए एन पी 3/2 क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, ये हो गया ए एन पी 3/2 सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्शन दिखाओ इसकी। इसको हमको एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, या इसको, हाँ ठीक है ना। ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट विच इज गिवन एज VP 3/2 का स्क्वायर बाई रो, ये लिखवाया था ना अभी। नहीं, हाँ ये नॉर्मल का है, नॉर्मल का ये वाला हिस्सा, ये इसका है, और ये वाला इसको हमने बताया डबल कर देते हैं, ये डबल वाला, ऐसे याद रखिए, ये पार्ट इसका है। और जहां तक इसकी बात है, जो ये तो फिर एक काम ही करते हैं, इस पार्ट को ठीक है, चलो ऊपर जगह नहीं है हमारे पास में। ये बताया व्हेन द लिंक 3 इज मूविंग ओवर स्ट्रेट पाथ, तो अब स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाएगा, रो तो इनफिनाइट हो जाएगा। इसको हम काट के कॉपी पेस्ट करके या नहीं बना सकते ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे दिखाओ, मैं मार्क करता हूँ दूसरे पेन से। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेट पाथ है, तो जो स्ट्रेट पाथ में क्या होता है कि रो इज इनफिनाइट, तो रो इनफिनाइट हो गया, तो अब क्या बचा, क्लोज द डोर। तो अगर ऐसे में हम स्टेटमेंट देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है ए पी इक्वल टू AP2 प्लस ये इनफिनाइट हो गया, ये कितना हो जाएगा, दिस टर्म ए एन पी, सॉरी क्या लिखा था, ANP 3/2 विच इज
VP3/2 स्क्वायर ओवर रो, है ना। रो इन्फिनाइट हो गया, दिस बिकम्स 0, ये हो गया 0, कोई बात नहीं। अब ये जो पार्ट है, ऐसे में ATP3/2 इज सिमिलर टू AP3/2, ये दो इसके कॉन्साइड कर गया इस वेलोसिटी से, है ना। हमने ये देखा था ना शुरू में, ये कॉन्साइड कर जाएगा ये पार्ट, और तो ये जाएगा AP3/2 प्लस ट्वाइस VP3/2 इंटू ω2। ये स्टेटमेंट आएगा जब हम कहेंगे बॉडी 3 इज मूविंग ओवर ए स्ट्रेट पाथ। ये है कर्वी लीनियर पाथ। मैं तो फिर से लिख देता हूं, कर्वी लीनियर पाथ, दिस इज क्या है, बॉडी 3 इज मूविंग ओवर ए कर्वी लीनियर पाथ, यहाँ पे है स्ट्रेट पाथ। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चंस, ये डेरिवेशन याद रखिए, ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिया जाएगा, दैट एक्सप्लेन और डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए मूविंग रिजिड बॉडी, है ना। या तो तीनों पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला तो बहुत ही सिंपल है, प्लेन मोशन ऑफ ए पार्टिकल, या फिर दूसरा भी ठीक है, प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, लेकिन ये डेरिवेशन एंड यहाँ पे ही होता है। उसका जो कंक्लूजन है फर्स्ट टू का, वो थर्ड में ही निकल के आता है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए पार्टिकल इन ए मूविंग रिजिड बॉडी, ये निकाला हमने। इसको इसको अगर हम अभी देखते भी हैं, हम इसका, ये तो डेरिवेशन हो गया, इसको हम यूज कैसे करते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, उसके बाद में हम कुछ आगे देखते हैं। ये इस पेज को यहीं पे खत्म कर देते हैं और हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। देखो जस्ट मिनट, कुछ हो सकता है, जगह है इसी में। एक जस्ट मिनट, ठीक है, आइए। बहुत अच्छे से नहीं बन पाया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई, जस्ट ए मिनट। स्केल एक्चुअली मेटल की स्केल स्क्रीन के ऊपर रखना थोड़ा सा रिस्की लगता है, ये कहीं मार्क परमानेंट ना बना दे। लेट मी जस्ट, चलिए हम एक यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सिंपल सा है, शुरुआत उसी से करते हैं। तो कर ही लें, 110 तक पे चल रहा था, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, आप भी जरा इसको देखिए और इसको बनाएंगे स्केच पे, सारी स्केच बुक पे टू द स्केल बनेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कोई प्रोपोर्शनेट फिगर आपने बना दिया और उससे लगा से आपका काम हो जाएगा, टू द स्केल बनाएंगे। और अगर उसका प्रोपोर्शन बढ़ाना भी है, 1:2 करना है, तो वो आप लिखेंगे और वहां पे आप
उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि आपने 1:2 लिया तो आ रहा है क्या, जैसे जहाँ 100 मिलीमीटर लिखा है तो वहाँ वो 200 मिलीमीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मेजरमेंट से होगा। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ग्लिम्स देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जस्ट सर ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल फाइल में ही करना है हाँ, ना? बनाइए बनाइए जितने भी ये दे रहा हूँ ये सारे, क्योंकि अदरवाइज आप कभी कर ही नहीं पाओगे और एग्जाम में ये होंगे नहीं उस वक्त जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये मैं एक आपको स्लाइडर, सारे एग्जाम्पल करीब करीब सब उसी से ही बेस्ड हैं जो हम पढ़ रहे हैं। स्लाइडिंग, ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये हमने एक बनाया, इसमें हमने कहा कि क्रैंक और क्रैंक के साथ में हमारे पास में say this is O2 which is say link 1, link 2, this is omega 2, here is link 3, this is link 4. Say there are 2 points, say A and this point is say B. Okay, the question says in the slider crank mechanism, shown in the figure, the crank O2A rotates at a constant speed of 1000 RPM in clockwise direction. Stop. Determine the velocity of, not only velocity, but the velocity and acceleration. Determine the velocity and acceleration of the slider when theta 2 is 45 degree. Where is theta 2? You mark it. This is theta 2. ठीक है, theta 2. इसमें इनफैक्ट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको हटा के ओमेगा 2 तो इट्स नॉन, इसको हम मार्क दिस टू, ठीक है। गिवन, और बिना लेंथ के काम ही नहीं है इसमें, यू कैन नॉट कम आउट विद एनी सॉल्यूशन। गिवन क्या O2A is 6 centimeter and AB as 16 centimeter, ठीक है। O2 6, AB 16। कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए, मैं देखता हूँ कहाँ तक हम पहुँचते हैं। और मीनवाइल अवीस एंड याशिका, यू बोथ टेक द अटेंडेंस आल्सो, देखिए कौन कौन एब्सेंट है। सर एसएस ले लिया मैंने। ठीक है ना, so let us go for the solution. First of all, let us move with the, say what is RPM दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है RPM में, हाँ। तो ओमेगा 2 is equal to 2 pi
Yes, sir. ऐसे भाई VB is equal to VA plus velocity of B with respect to A. Now you see, अब VA की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कुछ, है ना। अब B के लिए तो A रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन A मूवेबल भी है। जैसे A के लिए रेफरेंस पॉइंट था ये पॉइंट O2, लेकिन वो फिक्स था, इसलिए यहाँ पे 0 आया। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू है, इसको कैसे लिखेंगे? VA plus VBA is omega 3 into AB या BA, मीनिंग इज सेम। तो अब omega 3 हमारे पास है नहीं, वी डोंट हैव omega 3। देखिए अब हम बनाते हैं वही पॉलीगन। कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पे शुरू करते हैं। लेटस में बदल देता हूँ, कलर बदल देता हूँ। फ्रॉम O2 से देयर इज वन पॉइंट O2, ठीक है। तो इससे हम एक काम करते हैं, पहले A है और सेंस दिया हुआ है, तो हम इसका परपेंडिकुलर लेते हैं ऐसे V। तो जो आया उसको हमने यहाँ पे उसी का पैरेलल यहाँ पे खींच दिया विद सम नोन मैग्नीट्यूड, ठीक है, विद सम इसको हमने दे दिया A पॉइंट A। दिस इज VA। VA इज हाउ मच? VA इज 630. हाँ omega 2 into O2A, ठीक है। वो आप अपने स्केल से बना लीजिएगा। दूसरा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A हमें नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि omega 3 इज नॉट नोन टू अस। बट जिस प्रकार से हमने इसको लिया कि वेलोसिटी ऑफ B, जो वेलोसिटी ऑफ A इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसे वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A भी हमने पढ़ा अभी कि दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमने ये देखा था ना, यहाँ पे ये केस पढ़ा था हमने। इसमें हमने बॉडी के लिए कहा कि वो बॉडी अगर मूव कर रही है यहाँ पर, तो ये इसका परपेंडिकुलर जाएगा, था ये, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो वही चीज है, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हैं। It must be a line perpendicular to line joining AB, but we don't know the magnitude. Anyhow, do one thing, हम एक लाइन खींच देते हैं perpendicular to जहां पे ये कट हो रहा है, जहां पे ये पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लेंथ कहां तक जाएगी ये, बट अब तीसरी लाइन देखते हैं। वी बी जो है दैट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। This is a point B. This is a point B. ये वाला पॉइंट A, और इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, ऐसे, बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन दिस वे, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दिस इज योर, ये हो गया VB। दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये छोटा B बनाते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, हमने कैपिटल B रखा, तो फिर चलो फिर कैपिटल ही रख लेते हैं, इसको A को सही कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे जो पॉलीगन पे जो नोटेशंस होते हैं ना, अगर वहां कैपिटल दे रखे हैं तो यहाँ स्मॉल में भी किया जा सकते हैं, इट्स अंडरस्टूड। तो उसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर वहां A भी कैपिटल दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इसको छोटे से भी दिखा सकते हैं। एंड हम चाहें तो इसको यहाँ पे इट्स अंडरस्टूड कि वो आप B को यहाँ पे
स्मॉल बी में। तो यूजुअल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि जो पॉलीगन बनते हैं उसमें स्मॉल अल्फाबेट्स लगाते हैं और वहां रेफरेंस डायग्राम में आप कैपिटल अल्फाबेट्स लगा सकते हो। तो ये जो चीज है इसको आप ऐसे रख सकते हो, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज व्हाट। तो इससे क्या होता है, नाउ यू हैव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, वी बी ए या बी बाई ए कर दें, मीनिंग इज सेम। तो अब यहां से इफ यू नो दिस वैल्यू तो क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, ये लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो अब आर की जगह हमारे पास डिस्टेंस आ गया, आर हमारे पास क्या दे रखा था, ए बी, और ये हमारे पास ये मेजरमेंट क्या है, ये वेलोसिटी दिखा रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ बी, इसको भी कर लीजिए बी, ये दिखा रहा है वेलोसिटीज बी। तो अब आपको अगर ए बी निकालना है फिर तो आप ए बी डिस्टेंस यहां से ले लीजिए, या इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा थ्री है ना, ओमेगा थ्री इज इक्वल टू वी बी या वी ए बी या बी ए बाई आर। वी बी ए कितना होगा, ये डिस्टेंस मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको मार्क करिए, मेजर करिए, और नीचे ये लेंथ कितनी दे रखी थी, 100 नहीं 16, ये था ना, ठीक है। तो वहां से आपको ओमेगा 3 निकल आएगा। गॉट इट और नॉट? जैसे देखिए कैसे आएगा आपका ये, यहाँ पे हमने क्या निकाला, वी बी इज फ्रॉम दैट, इसको आप मेजर कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगी। तो सीधे सीधे आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज योर वी बी, दिस इज योर velocity of b with respect to a, and this is your velocity of a। ये हो गया वेलोसिटी पॉलीगन। वेलोसिटी पॉलीगन, ठीक है, गॉट इट। वी बी आ गया और वी ए आपके पास में आ गया, वी ए यहां से निकाला, सॉरी, और यहां से आपने ओमेगा निकाल दिया, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 निकाल करके अगर आप पुट करना चाहते हो तो फिर आप वो भी कर सकते हो, वी बी देन मस्ट बी somewhere whatever the value of 630 plus whatever the omega 3 comes, that is from graph, ठीक है, मैं लिख देता हूँ from diagram या from graph, from graph, ठीक है। या वो भी नहीं करना तो सीधे सीधे यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए, ये आपका, या अब उसको भी क्यों जाना, आपके पास में सीधे वी भी यहाँ से निकल रहा है। तो पॉलीगन मेथड जो ये वेलोसिटी पॉलीगन जो है आपको बगैर उसके ओमेगा निकलेंगे ही नहीं, मेजरमेंट करेंगे तभी ये ओमेगास निकलेंगे। ओमेगा 2 तो निकल आया क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर कर दिया, लेकिन ओमेगा 3 कैसे निकलेगा, दैट विल कम फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ, और इनफैक्ट मतलब मैं कहूंगा कि इन सबकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे इसको मेजर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप स्टेटमेंट लिखना जानते हैं कि नहीं। ये हो गया वी ए वी बी,
और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको लिखना होगा कैसे, रेडियंस पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एनालिसिस। ये हो गया इसका आपका, इसको लिख सकते हैं दिस इज योर वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस। क्या है एक्सेलरेशन, वो भी देखते हैं। जस्ट रिकॉल एक्सेलरेशन ऑफ, ये डायग्राम को याद में रखिए, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे बढ़ेंगे, acceleration of A is equal to acceleration of O2 plus acceleration of AO2, यही था ना। ठीक है, और क्योंकि A जो है वो उसके ऊपर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको ब्रीफ फर्दर जोड़ सकते हैं, acceleration of O2 plus acceleration of normal component of AO2 plus tangential component of AO2, जिसको कि अगर हम यहाँ देखें तो ये पार्ट तो हो जाएगा 0, और ये जो बनेगा क्या होगा, ये ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू O2A प्लस अल्फा 2 इंटू O2A। लेकिन सिंस, लिखिए, सिंस RPM is fixed, so अल्फा होता है क्या बेसिकली, अल्फा इज ओमेगा डॉट इज अल्फा। तो जब आरपीएम फिक्स है तो अल्फा बिकम्स 0, तो ये पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली इट बिकम्स दिस वैल्यू। ठीक है, ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू O2A। ये पहला स्टेट, ये पहली लिंक के लिए है। किस लिंक के लिए, ये वाली लिंक 2 के लिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ऐसे कीजिए, सिंस ओमेगा डॉट इज, है ना, that is alpha, which becomes 0 because RPM is fixed. तो एक्सेलरेशन ऑफ A तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A प्लस कुछ और है क्या पे, इसमें तो कोरिलेस नहीं लग रहा, इसमें तो कोई कोरिलेस नहीं है, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसी को अगर स्प्लिट करते हैं तो ANBA और ATBA, दिस इज द पार्ट यू विल गेट। और इसमें क्या होगा, whatever the value of acceleration of A you have plus omega 3 square AB plus alpha 3 AB। ओके, नॉर्मल टेंजेंशियल। समझ रहे हैं आप लोग, लिखते जाइए इसको। मुझे लगता नहीं है सीधे सीधे पहली बार में आपको समझ में आएगा, लेकिन दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेप्स, आपको इसको देखना होगा। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देन यू व्हेन यू यूज्ड टू फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आपके लिए हैंडी हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में होगा। सिंपली यू हैव टू प्रोड्यूस इट ऑन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे करना है। तो ये हो गया आपके पास में। तो इसमें अगर हम देखें तो वट एवर द वैल्यू, अभी कितना आएगा बताइए यहाँ पे, ओमेगा 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 कितना निकला था, ओमेगा 2 जस्ट रिकॉल 105 है ना, तो 105 का स्क्वायर इंटू O2A, O2A 6, हाउ मच इट कम्स अवीस, how much it comes, 105 का स्क्वायर इंटू 6, this comes as somewhere 6
150 सेंटीमीटर कैसे रखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट शुड बी करेक्ट। So acceleration, so basically I have taken it from centimeter, 105 लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ आइए, यहाँ पे क्या होगा, this must be 66150 plus alpha 3, oh sorry, omega 3। what is omega 3? निकाला कुछ किसी ने ओमेगा 3? मेजर करके निकालना होगा इस तरीके से ओमेगा 3 को। आई थिंक इन माई नोट्स शायद मैंने कहीं इसको निकाला हो या किसी बुक में से पुराना देखा हो। सपोज आई हैव सम वैल्यू हियर, which is say coming as omega 3 says that it is coming as omega 3 is coming as somewhere 27.5 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। ये अभी तो हम रैंडम मान लेते हैं, बाय मेजरमेंट कर लीजिए, ये जैसे भी है बाय मेजरमेंट, ठीक है। वो यहाँ पे डाला उसको VAB को, इस वैल्यू को, और बाद में उसको निकाला, तो दिस इज योर, यहां से लिया है, ठीक है। नाउ हम कहाँ थे, ये आ गया, तो 27 कितना लिया हमने, 27.5, हाँ 27.5 का स्क्वायर इंटू AB 16, ठीक है, AB 16, और क्या होगा, अल्फा, अब अल्फा नहीं है हमारे पास, अल्फा 3 वी डोंट नो, अल्फा 3 भी निकलेगा, जैसे वहां से ओमेगा निकला वेलोसिटी पॉलीगन से, अब यहाँ एक्सेलरेशन पॉलीगन से अल्फा 3 निकलेगा इनटू AB डैश। तो अभी ये स्टेटमेंट अभी खाली रखते हैं, पहले वो बनाते हैं, पॉलीगन बनाते हैं। लेट अस मेक ए पॉलीगन, लेट अस मेक अनदर पॉलीगन, ओके। एक्चुअली है ये, इसके लिए ना आपका वो जो रेफरेंस डायग्राम ऊपर वाला है वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि उसी से पैरेलल लाइंस आप खींच रहे हैं, उसी से पैरेलल लाइंस आप खींच रहे हैं। इसको ओके, इसको एक काम करते हैं, हमने पहले से जो पॉइंट लिया था दैट वाज से दिस इज, यहाँ पे मिल गया O2। अब O2 से VA, बिकॉज अब ये VA कौन सा बच्चा, VA इज नॉर्मल, हालांकि इसको भी अगर हम जब मूव करते हैं ना VA, तो इसमें भी नॉर्मल टेंजेंशियल बनने चाहिए, और क्योंकि टेंजेंशियल वो RPM फिक्स है तो वो 0 हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में सिर्फ ये बचता है, ये पार्ट, which is equal to what, this value is equal to this value, है ना, ये जो निकाला हमने। समझ में आया ना क्या किया, जब ANA होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या नॉर्मल टेंजेंशियल, क्योंकि कोई भी लिंक अगर घूम रही है ना, तो उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट बनने चाहिए। तो नॉर्मल टेंजेंशियल बनने चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब वो मैंने बताया नहीं इसमें, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ तो अल्फा निकल आया, तो अगर इसको हम शुरुआत से ही अगर देखें, जहां भी हमने शायद आपको दिया नहीं मैंने, ये जो था यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिए ना, ये वाले प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये जो था, इसमें अगर हम देखें तो इसको हम और अगर हम एक्यूरेटली चलें तो इसमें हमारे पास ये बन सकता था, और AP3 इज इक्वल टू ANP2 प्लस
P2 plus ANP3/2 plus AT3/2 plus twice VP3/2 ओमेगा 2, क्योंकि ये पार्ट क्या होगा आपका अल्फा 2 इंटू ए पी OP2 नॉट OP2 ना OP2 और ये प्लस ओमेगा ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू OP2। ये इसको आप चाहो तो ये हटा भी सकते हो, या चलो मैं यहाँ इंटू डाला हुआ तो इंटू दिखना चाहिए आपको OP2। और ऐसे ही तो इसमें क्योंकि आरपीएम फिक्स है, ये पार्ट 0 हो जाता है, तो ये पार्ट 0 हो गया तो ये पार्ट अपने आप कैंसिल हो गया, तो वो अल्टीमेटली यही बचता है ANP2। So it is applicable to all the links which are having a rotary sense। चलिए तो मैं ये चीज यहां से ना अभी तो ऐसे ही वो इधर भी आएगा AP3 is equal to ANP2 plus ATP2 plus A। अब वो अलग बात है कि यहाँ भी वही चीज कट करके कम हो रही है, जैसे हमने दिखाया था यहाँ पर कि वो ये 0 हो गया, तो रिजॉल्व करके हम वहां पहुंच गए। तो मैं सिर्फ एक ही तरफ ठीक है वहीं तक लिखते हैं, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये चीज अगर प्रॉपरली एक्सपेंड करते हैं तो उस तरीके से बनना चाहिए। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपने न्यूमेरिकल में हाँ, तो अब ये कहाँ था हमारा रेफरेंस डायग्राम को, तो रेफरेंस डायग्राम देखना पड़ता है AB। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, इसको अगर हम फिर से नीचे ले लें डायग्राम को, इसको ओके AB OAB फिर यहाँ स्लाइडर है वो इट इज समझ लेंगे उसको, ठीक है। रेफरेंस डायग्राम सिर्फ थोड़ा सा लाइंस वगैरह खींचने के लिए। देखिए अब जैसे ये आ गए तो अब हमें क्या करना है कि सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये जो पार्ट था AN है ना, ये जो पार्ट है ये सेंट्रीपिटल डायरेक्ट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हमेशा इसको ऐसे करते हैं कि इट विल बी नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये हुआ। तो with a known magnitude 66150 draw a line parallel to this line। So this is A, okay, point A। ये क्या हो गया AN AO2, AN AO2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ये जरूरत नहीं बनाने की, बस तो ऑलरेडी मैंने एक मार्क दिया होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू O2A। ये अब इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं था, 0 हो गया। नाउ मूव टू एक्सेलरेशन ऑफ ये पार्ट और ये पार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ B अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट और ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। ए अगर मैं इसको यहां दिखाऊं तो ये वाला हो जाएगा इसका AN BA और ये हो जाएगा ATBA टेंजेंशियल, ठीक है। तो नॉर्मल की तो डायरेक्शन हमें मालूम है, क्योंकि नॉर्मल का मैग्नीट्यूड हमें मालूम था, डायरेक्शन तो मालूम, मैग्नीट्यूड भी मालूम है। तो विद अ नोन मैग्नीट्यूड
draw a line which is parallel to this line. Don't know whether exactly whatever. हमने ये एक ले लिया, which is say B dash, which is what? A and BA, whose magnitude is how much? Magnitude is omega 3, sorry, उल्टा कर दिया, omega 3 square into AB, यही था ना, omega 3 square into, और अब हमें दूसरा पार्ट ये लेना है, alpha 3AB, but alpha is not known to us. Alpha is not known. Alpha is not known to us. But we know that it must be a line perpendicular to this line. To do one thing, draw a line perpendicular to this line without knowing the magnitude. ठीक है, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, वो तो बाहर देखने में ऐसा लग रहा है कि वहां पहुंच गया है, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। और नाउ ये हमेशा एक्सेलरेशन के डायग्राम वेलोसिटी के कंपैरिजन में ये उल्टी डायरेक्शन में बनते हैं, तो जस्ट सी, बिकॉज B हैज टू स्लाइड ईदर इन लेफ्ट साइड और द राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अब आप ये काम करिए कि इसको देखिए कि कहाँ से ये क्लोज होगा। आप देख रहे हैं अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये क्लोज हो रहा है ना, यू आर गेटिंग सम वैल्यू हियर व्हिच इज बेसिकली V, not V, this is acceleration of V. So when it intersects this line, this gives you acceleration of B, while this one will be quoted as normal, this will be quoted as ATBA, which means क्या हुआ, alpha 3 into AB is ATBA, ये मेजरमेंट करिए, अल्फा 3 उससे निकल आएगा, ATBA divided by AB. This gives you the value of some radians per second square. ठीक है, so this is normal component, this is tangential component, and now if you want you can join with a straight line here. This will be the resultant one. This will be the resultant one, which you can mark it like this. ये normal component इधर, ये tangential इधर, this is resultant one. तो ऐसे में resultant का फायदा क्या है? फायदा ये है कि suppose there is any point say near to say B, say point C, find out the acceleration of C. So अब C, how much it is, how far it is from A and how far it is from B. Locate this point, it is near to B. Do one thing, near to B, this is your point B. This is your point, now B, this is B dash B. So if somewhere say C, this is a point C. So acceleration of C will be directly, you join it from here. This will be your acceleration of C. This is your acceleration of A. ये उसका normal tangential. This is your C. Okay. Is it clear or not? Yes. कौन है? चलिए, अब ठीक हो गया, बस सरप्राइज है। ठीक नहीं हुआ, बस मैं दुकान जाता हूँ, तो पापा है ना हॉस्पिटल में, तो मैं बिना एडमिट के इलाज करा रहा हूँ। अच्छा, आपके फादर वहीं पे हैं? हाँ, तो पड़ेगा ना।
चलिए, मुझे लगा आप कुछ थोड़ा सीरियस हो गया इसलिए। मैटर तो सीरियस था, लेकिन मेरे से रुका नहीं जाता, तो मैंने कहा मैं घर ही इलाज करा लूंगा। पापा बोले अभी मैं हॉस्पिटल ही गया था दोपहर में, ओके, 2-3 बोतल ग्लूकोज चढ़ी है, एंटीबायोटिक वगैरह चढ़े हैं। फिर अभी कल फिर से जाना है दोपहर में। चलिए आ जाइए, बैठो। So, okay, sorry. I think now the solution is in front of you. Okay? Solution is in front of you. क्या मांगा है इसमें? क्वेश्चन में क्या मांगा था? Determine the velocity and acceleration of the slider. Slider का मतलब पॉइंट B, है ना? तो हमने देख लिया एक्सेलरेशन ऑफ B कितना आ गया, दिस वैल्यू, ठीक है ना? दिस इज योर, सॉरी मैं बार बार ओवर राइटिंग करने से खराब हो जाता है। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसको सीधे मेजर किए। और ये स्टेटमेंट लिखना और अल्फा की वैल्यू निकालना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो देखिए, सॉल्यूशन तो पूरा एक ही पन्ने पे पूरा बन जाता है, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग। आप देख रहे हैं, इसमें आपको इधर वेलोसिटी डायग्राम बनाना है जिसमें सारे ओमेगास निकलेंगे, और एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है जिसमें सारे अल्फाज निकलेंगे, ठीक है? ऑल अल्फा एंड ऑल ओमेगास। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और बाकी लोग कोई नहीं बोल रहे भाई खाली अटेंडेंस के लिए बैठे हैं क्या? अवीस, याशिका, Yashika, are you there? So you can see that I have made the solution almost. I don't know whether you require A3 full sheet or you require half sheet, but your reference diagram should be in front of you so that you can draw velocity polygon as well as acceleration polygon. Okay. So in this way, you have to solve the problems neat and clean, at least on the half page of the A3 size sketchbook. चलिए बनाइए, इसको करिए, है ना? ये तो मैं बना चुका हूं, आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपर बनाना पड़ेगा। यहाँ तो क्योंकि कुछ डाटा मैंने प्रिज्यूम कर लिया, आई प्रिज्यूम की ओमेगा 27.5 आ गया, डिस्टेंस यहाँ पे भी हमने कोई ऐसे स्केल नहीं ली। So just a rough approach to show you that how the problem is to be attempted. Okay? ओके सर। तो मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और आप लोग बनाइए इसको। So let us see, मुझे लग नहीं रहा मैं अगले हफ्ते कोई क्लास ले पाऊंगा आपकी, तो मैंने जितना भी कराया है इस सब को चीजों को आप अपने इसमें बनाइए, अपनी जो फाइल है असाइनमेंट में। ओके सर। ठीक है, नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स होने चाहिए, आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में भी वही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका वेलोसिटी पॉलीगन और ये बनना चाहिए जिसमें कि मेजरमेंट से आपकी वैल्यू निकले। साफ मालूम पड़ जाएगा कि अगर आपने कॉपी किया है बिना मेजरमेंट के तो दिख जाएगा कि लाइंस पैरेलल नहीं आ रही हैं, लाइंस मेजरमेंट अगर नहीं छोटे बड़े हो गए तो वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो ये जो रेफरेंस डायग्राम आपका है, ये वाला है ना, ये रेफरेंस डायग्राम इनके साथ में मैच ही नहीं करेगा। So this I am giving you as an assignment. Okay? चलो अब बंद करता हूं मैं क्लास को। Okay, Avish, you give me the attendance. यस सर। So I'm leaving this class now, huh? थैंक यू सर। Okay, okay, थैंक यू सर। okay. So क्या दूसरा सेक्शन था कि नहीं था अविश? सर था सर, अब थोड़े कम हो गए। कम हो गए, बट ये मालूम इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कराया आपको। ये मैंने इसमें ना आपको क्या किया है कि एक क्वेश्चन में वेलोसिटी भी दे दिया और उसी में मैंने एक्सेलरेशन भी पूछ लिया। हाँ, जबकि बुक में दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। यस सर। उसमें भी लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ही प्रॉब्लम को वेलोसिटी में भी दिखाया, उसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करके एक्सेलरेशन में दिखाया।
अब देखिएगा प्रॉब्लम्स, जो एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में भी डिस्कस की गई है। ओके सर, तो हाँ, इनको देखिए आप लोग। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके।